Hello students, today we continue our lesson number 3, money and inflation. We completed 90% of the topic in our previous videos. Which topic we completed? Meaning of a barter system, limitation of barter system, origin and development of the concept of money, meaning of money and function of money, types of money, meaning of inflation, definition of inflation, characteristics of inflation. Today we start causes of inflation. Now first we discussed what is inflation. In a previous video we discussed what is inflation. A situation of excess demand over a supply of goods is called inflation. A situation of excess demand over a supply. सप्लाई बहुत स्लो है और डिमांड बहुत हाई है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. और इन अ सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ रेज इन द जनरल प्राइस लेवल. अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. नाउ वी स्टार्ट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. Inflation means constant increase in the price of goods and services in all sectors of an economy. The two major factors affecting the price of goods and services are demand and supply. दो फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन में. कौन से? डिमांड और सप्लाई. So the major factors affecting inflation are increase in demand and increase in production cost. Major factor affecting inflation is which? Increase in demand and increase in the production cost. First we discussed increase in demand. There is an increase in demand of product which leads to increase in its price. अगर डिमांड हाई है और सप्लाई लो है तो क्या हो जाएगा? प्राइस हाई हो जाएगी. इफ सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड और इफ they are provided at a slower rate than increasing demand, then there is an increase in a price of product. If there is an inflation due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, then it is called demand pull inflation. Inflation due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द मेजर रीज़न फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलोइंग. कौन से रीज़न है जिससे डिमांड हाई होती है? फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी. अगर मनी का सप्लाई बहुत ही बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. मॉनेटरिस्ट कंसिडर्ड इन्फ्लेशन एज अ purely monetary phenomenon. According to them, if there is an increase in a money in a state, the individual earn more income, because of which the demand of necessities increase. अगर हमारी इनकम हाई होगी तो हमारी डिमांड भी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी. हम थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स में अगर हमारा काम चला लेते थे, लेकिन अगर अब डायरेक्टली हमारी इनकम हाई हो गई तो हम क्या सोचेंगे कि अब हम लग्जरियस प्रोडक्ट्स भी परचेज करें. अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन्स स्टेडी, लीडिंग टू इंक्रीज इन अ प्राइस एंड इन्फ्लेशन. टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन. टू मच मनी, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम क्या करेंगे? जो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स होगी वो परचेज करने का ट्राई करेंगे और उसकी सप्लाई हमेशा कैसी रहेगी? लो. और हमेशा प्राइस उसकी कैसी रहेगी? इंक्रीज. मीन्स कि अगर इंडिविजुअल की इनकम रेज होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने का ट्राई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? डिमांड हाई. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी. अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. सेकेंड इज इंक्रीज इन अ पब्लिक एक्सपेंडिचर.
The government of developing countries like India is involved in economic development of the country. Government incurs expenditure after installing infrastructure, provision of basic utility, or provide employment which increase the supply of money in the economy. These increase the income and demand for the people which lead to a raise in the general price level. अब गवर्नमेंट है वो डेवलप करेगी कंट्री को, लाइक डेवलपिंग कंट्री इज इंडिया इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर किस इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविज़न ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़. गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करती है हमें पब्लिक को. प्रोविज़न ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़ हमारी फुलफ़िल करती है. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है. Thus, if the government circulates money in excess of the production of goods and services in economy by increasing public expenditure, then the raise of general price level gains monuments. Means अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल रहा है, हमारे पास गवर्नमेंट ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है तो हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा. सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का भी सोचेंगे, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट परचेस या सर्विस एक्वायर करने का सोचते हैं. तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन. थर्ड इज ओवर पॉपुलेशन. In India, there is a 2% annual increase in a population leading to an increase in a demand of individual. The increasing population causes increase in the demand of basic requirements and when the supply is insufficient. इंडिया में 2% रेट से हर साल पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट और रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी. पॉपुलेशन हाई होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से डिमांड हमेशा कैसी रहेगी, इंक्रीज रहेगी. हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. व्हेन द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट बट देयर परचेसिंग पावर इंक्रीज ड्यू टू रेज ऑफ देयर इनकम, देयर इज एन इंक्रीज इन अ प्राइस लेवल. अगर पॉपुलेशन भी सेम हो लेकिन परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, प्राइस लेवल हाई हो जाता है. थस सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉलोड बाय इंक्रीज इन अ प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जो सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को कौन इंक्रीज करता है, सप्लाई ऑफ मनी, followed by increase in a price level of goods and services. First we show increase in a supply of money, second is increase in a public expenditure and third is overpopulation. Now next, increase in a cost of production. First we what discussed, increase in demand and three major reason for increase in demand. First is increase in supply of money, second is increase in a public expenditure and third is overpopulation. Now second, increase in a cost of production. The other major factor affecting the price in the supply of goods and services, supply oriented economists believe that when there is an increase in a production cost, there is an increase in its price. अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा तो प्राइस लेवल कैसा हो जाएगा, हाई. अगर रॉ मटेरियल जहाँ से हम परचेज कर रहे थे वहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस अगर हाई होती है तो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो जाती है तो उसकी जो प्राइस लेवल है वो भी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा. If there is an increase in a cost of raw material, machines, electricity, हम देखते हैं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी के रेट है, ऑयल के रेट है, पेट्रोल के रेट है, सब कैसे हो रहे हैं, हाई हो रहा है क्योंकि उनका रॉ मटेरियल कैसा हो गया है, कॉस्टली हो गया है.
water rates, workers' wages or transportation, there is an increase in the price of goods or services. क्या होता है कि अगर मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई हो जाता है तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके रेट ऑटोमेटिकली रेज हो जाते हैं. The inflation causes due to increase in a production cost is called cost push inflation और supply shock inflation. cost push inflation हम किसे कहेंगे? The inflation caused due to income in a production cost, sorry, increase in a production cost. अगर production cost increase हुआ है तो वो क्या कहते हैं? उसे हम cost push inflation और supply shock inflation. Other reasons, the major reason for inflation are increase in demand and increase in a production cost. दो major reason है, increase in demand और increase in a cost of production. But particularly there are also other factors which can affect the inflation. Even though the minor factors are for a short term, they cause a peak in a price levels. Example, in industry based on a foreign import, if there is an increase in the import expense or if there is a shortage during the contingency, it can lead to price rise. अगर फॉरेन हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो फॉरेन में सप्लाई कर रहे हैं तो अगर इंपोर्ट करने का प्राइस हाई हो जाएगा. कोई कंट्री से प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंपोर्ट करवा रहे हैं, अगर इंपोर्ट प्राइस हाई होता है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस लेवल होगा प्रोडक्ट और सर्विसेज का वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ रही है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो प्राइस को रेज कर देता है. बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन अ डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट अदर मेजर फैक्टर आर एज फॉलोज. दो मेजर फैक्टर हमने डिस्कस किए, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. नाउ अदर फैक्टर्स इज टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्राइस पे. अगर कोई प्रोडक्ट का टैक्स रेट है 5%, अब उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 12% कर दिया तो प्राइस ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? रेज हो जाएगी. या फिर कोई 8% वाली चीज़ को 18% में कन्वर्ट कर दिया, इतना टैक्स अगर गवर्नमेंट कर देगी तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. मीन्स कि टैक्सेशन पॉलिसी, द taxation policy of the government caused the inflation. The high increase in a tax rate increase the production cost of products, which leads to raise in inflation. Second is increase in a price of import. अगर import price में भी changes आते हैं, increase हो जाती है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन. इन इंडिया 17% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इम्पोर्ट. हमारी कंट्री में 70% पेट्रोलियम कहाँ से आता है? इम्पोर्ट थ्रू. मीन्स कि अदर कंट्री से आ रहा है, तो अगर उसकी ड्यूटीज़ हाई हो जाएगी, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ crude oil in an international market, then there will be an increase in a rate of petrol and diesel, which can also increase the price of other product. And last is scarcity. When there is a scarcity in terms of raw material, electricity or any requirement for production, it leads to increase in a price level of the goods or services. If scarcity prevails for a long period during a production or it's extensive in a nature, it can cause the inflation. अगर स्कैरसिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी इन्फ्लेशन हाई हो जाता है. मीन्स कि टू मेजर फैक्टर क्या है? फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड अदर मेजर फैक्टर इज taxation policy, increase in the price of import
and third and last is scarcity. We completed the causes of inflation. Two main factors affecting the inflation: increase in demand, increase in production cost. The major reason for increasing demand is increase in a supply of money, increase in a public expenditure and overpopulation. Second is increase in a cost of production, and other reason is taxation policy, increase in a price of import and scarcity. Lesson number 3, money and inflation completed. We discussed all the topic of this lesson. Thank you. Goodbye.